Hello students, today I am going to discuss part 11 of Principles of Inheritance and Variation. In this part we will discuss about the genetic disorders due to chromosomal abnormality in autosome and sex chromosome. First we will discuss about the gene mutation in autosome. The first disorder is the alkaptonuria. It is inborn metabolic disease and first described by Garrod in 1908. It is inherited autosomal recessive metabolic disorder. Here are few things are there to note that it is inborn, ये पैदा होने के से पहले से ये होती है, ये इनहेरिटेड है, पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है. इसके जो डिफेक्टिव जीन हैं ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेसिव स्टेट में, यानी ऑटोसोमल है तो अगर स्मॉल ए होगा तो ये डिफेक्टिव होगा, जबकि कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए ये नॉर्मल होंगे. इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यहाँ पर किस चीज़ का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. एक्चुअली दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय due to the deficiency of oxidase enzyme required for the breakdown of tyrosine. ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाता है डिफेक्टिव जीन की वजह से, जिसकी वजह से टायरोसिन का ब्रेकडाउन नहीं होता है. और ये जो नॉर्मल जीन है या जो डिफेक्टिव जीन है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 3. टायरोसिन के ब्रेकडाउन नहीं होने की वजह से इट इज़ कन्वर्टेड इनटू होमोजेनेस्टिक एसिड और एल्कैप्टोन. It is stored in the tissue and also excreted in the urine. Here AA is normal, capital A small a यानी heterozygous dominant is also normal, but the small a और homozygous recessive is sufferer. जिस इंडिविजुअल के अंदर दोनों अलील्स डिफेक्टिव होंगे और रिसेसिव स्टेट में होंगे उसको वो एल्कैप्टोन्यूरिक होगा, यानी उसको एल्कैप्टोन्यूरिया होगा. जो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं, इट इज़ द हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, किडनी एंड प्रोस्टेट स्टोन्स, हार्ट वॉल्स आर अफेक्टेड, कार्टिलेज, कैप्सूल ऑफ जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड. नेक्स्ट, it is first described by Poling in 1934. It is inborn autosomal and recessive metabolic disorder. ये भी since birth ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होते हैं, रिसेसिव स्टेट में ये अफेक्ट करेंगे और ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. सो इन विच द होमोजाइगस AA recessive individuals are affected. Actually these individuals, they lack enzyme phenyl hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced because of the defective gene. It is needed to convert the phenylalanine to tyrosine in the liver. तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म किस चीज़ का नहीं हो रहा है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और इसका रीज़न क्या है, ये एंजाइम नहीं बनता है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलेनिन है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है और एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम हाइपर फिनाइल एलिनीमिया कहते हैं. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन द यूरिन. This defective enzyme is present, this defective gene is present on the chromosome number 12 and it is due to the substitution of the nitrogenous bases. The affected babies are normal at the birth, but within a few weeks there is rise in the phenylalanine level which impairs the brain development. These children are unable to walk and talk. Other symptoms are mental retardation, decreased pigmentation of hair and skin. Phenylalanine is excreted in the urine and sweat, and there is accumulation in phenylalanine and phenyl pyruvate in brain that results in the damage.
Next is albinase. It is also a autosomal recessive genetic disorder. The defective genes are present on autosomal chromosome. They are also expressed in recessive state. In this disease, the absence of enzyme tyrosinase is essential for the synthesis of melanin pigment from dihydroxyphenylalanine. तो ये एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता है, एंड दिस मेलानिन पिगमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द स्किन. और क्यों नहीं बनता है? क्योंकि टायरोसिनेज एंजाइम बॉडी में नहीं बनता है डिफेक्टिव जीन की वजह से. तो मेलानिन के ना बनने से बॉडी स्किन में कलर नहीं होता है. आपने देखा होगा जो एल्बिनो हैं, दे आर ऑफ वाइट कलर, एंड it is because melanin pigment is not there. The recessive gene for albinism is A, does not produce enzyme tyrosinase, but its normal allele produces the gene. Thus only homozygous recessive individuals are affected by the disease. Albino lacks dark pigment melanin in the skin, hairs and iris. That's why they appears somewhat pinkish or whitish color, because they do not have melanin pigment, which is responsible for the color of the hair, color of the skin, color of the iris. Next is sickle cell anemia. It is also autosomal hereditary disorder in which the erythrocytes become sickle shaped under the oxygen deficiency during strenuous exercise or at higher altitude. Under normal condition, their RBCs are normal, but at the time of oxygen deficiency or tension, for example during some heavy or strenuous exercise and at higher altitude, जब भी ऑक्सीजन कम होगा, they become sickle shaped. Here you can see that they become sickle shaped. The disorder is caused by the formation of abnormal hemoglobin called hemoglobin S. The hemoglobin S differs from hemoglobin A. This hemoglobin A is the normal hemoglobin in only one amino acid, that is at 6 amino acid of beta chain. It is very important to note here that this defect takes place in the beta chain, 6 amino acid of the beta chain. Here the 6 amino acid glutamic acid is replaced by valine. Glutamic acid valine से replace हो जाता है. It is due to the substitution of T by A in triplet codon CTC to CAC. Here you can see that this one is the first codon, second codon, third codon, fourth, fifth and sixth. So this defect takes place in the sixth codon, where CTC is replaced by CAC. Here you can see that this CTC is replaced by CAC, जिसकी वजह से जो 6th पोजीशन पर पॉलीपेप्टाइड चेन के 6th पोजीशन पर जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होता है, उसकी जगह पर वैलीन आ जाता है. तो इस चेंज की वजह से सिर्फ एक यहाँ पर बेस चेंज हो रहा है. यहाँ पर T की जगह here CTC is changed into CAC. इस T की जगह पर T is substituted by A. That's why CTC produce glutamic acid and CAC is responsible for the formation of valine. So at 6th position of polypeptide chain, glutamic acid is replaced by valine. The gene is situated on the chromosome number 11. The 6th valine
forms hydrophobic bonds with the complementary sites of the other globin molecule, and it distorts their configuration. As a result, the erythrocyte having hemoglobin S become sickle shaped. तो वैलिन जब ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है तो ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ कुछ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन एस में कन्वर्ट हो जाता है और आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है, चेंज हो जाता है. The cells cannot pass through narrow capillaries. Normally the cells of RBC are spherical, but when they become sickle shaped यानी इस तरह का जब ये हो जाता है, then it becomes difficult to pass through the narrow capillaries. They have a tendency to clot and degenerate. It results in anemia. Clogged blood capillaries reduces the blood circulation. टिश्यूज़ आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन में नहीं पहुंचती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. जॉन्डिस कैन अपीयर, स्प्लीन एंड ब्रेन कैन डैमेज. द पेशेंट फील्स एक्यूट फिजिकल वीकनेस, हेडेक एंड मस्कुलर क्रैम्प. क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो उसको फिजिकल वीकनेस, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, हेडेक होता है एंड मस्कुलर क्रैम्प होता है. The gene for sickle cell erythrocyte is represented by HBS, while that normal erythrocyte is written by HBA. तो जो sickle shaped erythrocyte है उसको हम यानी abnormal hemoglobin HBS से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो normal erythrocyte है उसको HBA से रिप्रेजेंट किया जाता है. Homozygous sickle cell HBS, they die in the childhood due to acute anemia. So only despite having harmful effect, the allele for sickle cell anemia continues to persist in human population because it has survival value in malarial infested area like tropical Africa. यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों को मलेरिया नहीं होता है बिकॉज मलेरियल पैरासाइट इज़ अनएबल टू पेनिट्रेट द एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन एंड डू नॉट कॉज एनी हार्म. तो ट्रॉपिकल साउथ अफ्रीकल रीजन में इट इज़ बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ दैट प्लेस because they are prevented. The malaria is prevented because of this sickle cell anemia. In case of sickle cell anemia, the membrane become impermeable to these malarial parasite, इसलिए उनको मलेरिया नहीं होता है. ये उनके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है कि वो मलेरिया से बचे रहते हैं. Next is thalassemia. It is characterized by the reduced synthesis of either alpha or beta chain. As we know that hemoglobin consists of 2 alpha and 2 beta chains, but here reduced synthesis of either alpha or beta chain takes place in human being, and they are of 2 types. Beta thalassemia. Here the reduced synthesis of beta chain takes place. बीटा चेन नहीं बन पाती हैं, जिसकी वजह से अल्फ़ा चेन जो बन रही हैं दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड विच डैमेज द प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी इन द बोन मैरो कैविटी कॉजिंग एनीमिया. तो यहाँ पर होता ही है कि किसी डिफेक्ट की वजह से, जीन डिफेक्ट की वजह से जो बीटा चेन है ये नहीं बन पाती हैं. बीटा चेन नहीं बनने से जो अल्फ़ा चेन है ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, और जो आरबीसी प्रिकर्सर हैं बोन मैरो के अंदर वो सेल्स जिनसे आरबीसी बनते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और फिर इन्हें एनीमिया हो जाता है. द पर्सन होमोजाइगस फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑफ बीटा थैलेसीमिया suffers from the severe hemolytic anemia, cardiac enlargement, skeletal deformities.
Heterozygous person are also not normal. So in both the cases, in homozygous recessive and heterozygous dominant person, they are the sufferer. Similarly, alpha thalassemia it is caused by the defective alleles controlling the synthesis of alpha hemoglobin. Here the alpha hemoglobin is not produced. Alleles in the homozygous condition for alpha thalassemia minor. 3 defective alleles cause accumulation. Here the 3 defective alleles if are present, then accumulation of beta chain takes place, and they are accumulated in the form of tetramers, and they are known as hemoglobin bards in infants, hemoglobin H in adult. This is anemia. There is anemia, jaundice, hepatosplenomegaly and bone changes. तो यहाँ पर यही होता है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, बीटा चेन में बीटा चेन की सिंथेसिस नहीं होती है, और अल्फ़ा चेन एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो प्रिकर्सर हैं आरबीसी के वो डैमेज हो जाते हैं, और फिर और आरबीसी नहीं बनता है उनके अंदर, और पर्सन को एनीमिया हो जाता है। दूसरा, अल्फ़ा थैलेसीमिया में भी ऐसे ही होता है कि जो अल्फ़ा हीमोग्लोबिन चेन है वो नहीं बन पाती हैं। इनके नहीं बनने की वजह से जो बीटा चेन है वो एक्यूमुलेट होती हैं और टेट्रामर्स की फॉर्म में ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं। इनको हम हीमोग्लोबिन बार्ड भी कहते हैं, और इसकी वजह से मेनली एनीमिया, हीमोगीलिया, एनीमिया, जॉन्डिस, हिपैटोस्प्लेनोमेगली एंड बोन चेंजेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। फर्स्ट वन इज द hemophilia. The patient continues to bleed. Next is gene mutation in sex chromosome, and first is the hemophilia. The patient continues to bleed even after a minor cut. यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है जो क्लॉटिंग है ब्लड की वो नहीं हो पाती है। अगर एक माइनर कट भी लगता है तो जो पर्सन है वो उसमें ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8, इसको हम हीमोफीलिया ए भी कहते हैं, और दूसरा जो फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर 9, इसकी वजह से हीमोफीलिया बी होती है। तो यहाँ पर दो तरह की हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ए जिसमें फैक्टर 8 क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, और हीमोफीलिया बी में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9 एब्सेंट होता है। There is no permanent cure of the disease, only transfusion of blood checks bleeding because it provides missing factor for clotting. It is caused by the recessive sex-linked genes carried by X chromosome. अभी तक जो हमने डिसऑर्डर डिस्कस की थी वो ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स में जीन म्यूटेशन की वजह से थी। यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये रिसेसिव जीन होता है, और सेक्स लिंक जीन्स में ये प्रॉब्लम होती है। मेनली जो रिसेसिव डिसऑर्डर हैं दे आर एक्स लिंक्ड। फीमेल बिकम्स हीमोफिलिक ओनली व्हेन बोथ द एक्स क्रोमोसोम कैरी द जीन्स। फीमेल इस कंडीशन में हीमोफिलिक होंगी, बट इफ फीमेल्स आर प्रेजेंट द alleles present in female only one X chromosome is affected, then females are carrier. यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि फीमेल्स कम सफ़र होती हैं, क्योंकि ये तभी सफ़र करेंगी, इनको तभी ये डिजीज़ होगी, डिसऑर्डर होगी जब इनके अंदर XH और XH यानी दोनों X क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव अलील प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर एक पर डिफेक्टिव अलील है और एक नॉर्मल है तो फीमेल जो है वो कैरियर ऑफ द डिजीज़ होती हैं। इसका जो रीज़न है बिकॉज एन अलील फॉर द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग इज प्रेजेंट ऑन द अदर एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि वाई मेल हैविंग ओनली वन डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आर द सफरर वाइल द फीमेल्स आर कैरियर। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फीमेल के अंदर भी एक XH है यानी एक डिफेक्टिव क्रोमोसोम है,
मेल के अंदर भी एक डिफेक्टिव क्रोमोजोम है, तो ये कैरियर ऑफ द डिजीज़ हैं, इनको बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये बीमारी प्रोड्यूस कर सकती हैं अगर इनके क्रोमोजोम जब इनहेरिट होंगे। मेल्स के अंदर भी एक ही XH है, एक ही डिफेक्टिव क्रोमोजोम है, लेकिन ये सफरर है। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज ये एक फीमेल क्रोमोजोम है, ये X है, ये X है। अगर यहाँ पर H डिफेक्टिव H हीमोफिलिक जीन है और यहाँ पर नॉर्मल एक H जीन है, तो अगर एक ही X क्रोमोजोम पर डिफेक्टिव जीन है तो दूसरा जो है नॉर्मल जीन प्रेजेंट होगा और नॉर्मल डोमिनेंट होता है, ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, लेकिन फीमेल कैरियर होगी क्योंकि उसके अंदर डिफेक्टिव X क्रोमोजोम प्रेजेंट है। मेल के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनका जो Y क्रोमोजोम है ये सिमिलर नहीं होता है, मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट शेप साइज का प्रेजेंट होता है। तो अगर मेल का X क्रोमोजोम है और इस पर एक डिफेक्टिव जीन यहाँ प्रेजेंट है, ये X है, ये Y है, तो इसका कोई भी काउंटर पार्ट सामने नहीं है, कोई भी नॉर्मल जीन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मेल के अंदर एक X क्रोमोजोम होने से उसको डिजीज़ हो जाती है, वो सफरर होता है, और फीमेल के अंदर नहीं होती है क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल जीन दूसरे अलील्स पे प्रेजेंट है, तो ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है, लेकिन फीमेल कैरियर होगी। फीमेल सिर्फ उसी कंडीशन में सफरर होगी जब उसके दोनों X क्रोमोजोम पर डिफेक्टिव जीन फॉर हीमोफीलिया प्रेजेंट होगा। Next is color blindness. Individuals suffering from color blindness fail to differentiate between red and green color. It is also a recessive sex-linked disease. Defective recessive allele is present on the X chromosome. Here also the females will be sufferer only if there is XC type of condition is present, means both the X chromosome have defective alleles for this color blindness। अगर दोनों X chromosome पर defective alleles है तो फीमेल सफरर होगी, अदरवाइज फीमेल कैरियर ऑफ द डिजीज़ होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फीमेल एक ही डिफेक्टिव X क्रोमोजोम के साथ कैरियर क्यों होती है, और मेल के अंदर ये डिजीज़ अपीयर्स होती है इफ़ ओनली वन XC इज़ प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमने ये अभी डिस्कस किया कि फीमेल के अंदर अगर ये दोनों X क्रोमोजोम हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रोमोजोम डिफेक्टिव है, तो इसका जो अलील्स होगा ये एक नॉर्मल अलील है, ये इस डिफेक्टिव जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो मेल विद ओनली वी कैन राइट हियर C, मेल विद ओनली one defective X chromosome is always a sufferer, while female in male, if only one defective gene is there, and we can draw like this. In male, this is X chromosome, the Y chromosome is shorter than X chromosome. Suppose defective gene for color blindness is present here, तो इसका कोई भी काउंटर पार्ट, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं है जो इसको एक्सप्रेस होने से रोके या इसे सप्रेस करे, एक्सप्रेस ना होने दे। लेकिन फीमेल के अंदर क्या है कि इसका यहाँ पे जो नॉर्मल जीन है ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है, इसलिए फीमेल विद वन XC इज़ द कैरियर ऑफ द डिजीज़ एंड मेल विद वन XC इज़ द सफरर ऑफ द डिजीज़।